So the next, we moving on to the next session, and that's the in the first part of the sessions we will discuss the how to conduct and how to use systematic literature review. More than conducting systematic literature review, how to use that and how to interpret that. Interpretation is important because you might be reading a lot of papers, a lot of reports maybe, but uh, yesterday we discussed that whenever we are making a decision whether to go for a program, not to go for a program, or maybe for evaluation or not, so we actually resort to literature, because literature offers uh, a lot of evidence, whether already there are evidence that something was successful or not successful. So that's why understanding the existing literature, the existing stock of knowledge, is very important for us before moving, and moving on and to make our own decisions to hire a consultant for evaluation. And so of course our purpose is not only evaluation, but it's just generally applicable to your own functions in the department. And then after that, I'm gonna do some exercise, on laptop here, and those of you who are having laptops, then you will be able to follow me. And then we will be able to generate the evidence gap map, and that gap map will actually tell you, you can easily see that, okay, which particular area is lacking evidence, and in which particular area there are a lot of evidence that we can actually learn from those evidence, and we can build our own argument based on that. And if there is no evidence, there is a gap, then we can potentially look for our own studies to conduct them, and that can be potentially useful for other people to follow us as well. So but first I will go for the systematic literature review briefly. So basically, what is the difference between a general literature review, that when you read book, paper, and reports or whatsoever, and a systematic literature review? The difference is basically that in systematic literature review, we are following a structured protocol, and we give up this discretion to to just read, based on our own interest, but we identify certain keywords, and within that keyword we limit ourselves, and we set a protocol for that. So those studies which are, fulfilling those criteria will only be part of our studies, kind of literature universe. And then using that literature we can quantify that as well. The good thing is that we are kind of collecting a lot of papers, a lot of evidence, and then we aggregate them in a way that gives us a general picture that will be a proof that not only one researcher, two researchers, three researchers, but thousands of researchers have actually found that there is an effect. And how much was the effect? We also aggregate that and calculate a sort of average of that. So that's sometimes people call that meta-analysis or systematic literature review, but that's the outcome of literature review basically. um what are the benefits of conducting literature review before making a decision? Is that it helps us make an informed decision rather than making a decision based on our own perceptions or maybe our own worldview. Then, as I mentioned earlier, that we give up this personal discretion, so there is no bias, because Mr. A ने स्टडी की है, Mr. B ने की है, Mr. C ने की है, we don't care. जिस भी मुल्क में की है, हम देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट सिमिलर हो, कंडीशन सिमिलर हो, लेकिन उसमें ये पर्सनल लाइकनेस डिसलाइकनेस नहीं है कि कौन सा टॉपिक है, कौन सा नहीं है. ऑफ कोर्स हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल हम सोशल प्रोटेक्शन पे काम करते हैं, तो वी विल सेट दोज कीवर्ड्स फॉर दैट, एंड देन बीइंग अप टू डेट. अभी कल किसी ने जिक्र किया ना कि व्हाई, आई मीन, समटाइम्स व्हेन वी स्टक टू, व्हेन वी आर मेकिंग अ डिसीजन, वी स्टक दैट इसके ऊपर काम हुआ होगा यार, आप देख लें कहीं, एविडेंस देख लें, अगर ये वाकई सक्सेसफुल है तो व्हाई डोंट वी रेप्लिकेट दिस हियर. कभी कभार हम ये भी डरते हैं कि हम एक काम कर लें और इसके ऊपर कोई एविडेंस है, लेकिन वो काउंटर इंट्यूटिव एविडेंस है. वो एविडेंस ऐसी है कि वो सजेस्ट करते हैं कि कोई सक्सेसफुल नहीं है, और खुदा ना खासा हम प्रोग्राम लॉन्च कर ले, एंड एट दैट एंड्स अप विद सम नेगेटिव कंसीक्वेंसेस. फिर हमसे सवाल किया जाए कि भाई आप लोगों ने एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज को सर्च नहीं किया कि उसमें एविडेंस है कि नहीं है. एंड बिलीव मी, आजकल देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क going on the evidence generation basically, like studies like RCTs and the one that we discussed yesterday.
International agencies are spending a lot of money on this as well. They collect those evidence and they build their platforms so that, and they make it public for you, for governments actually, to utilize that data and to see where is the gap, where is not the gap, and also to replicate possibly if they can do. Now this is technical. I mean, when you start doing systematic literature review, I know you may not be doing it, you may be asking someone else to do it for you, but just to let you know about how do we conduct the systematic literature review. We use certain keywords, not certain keywords, but keywords of our own interest, but we limit those keywords using the Boolean operators. And that's like, let me show you the next slide. I think this one. So if I can put, okay. So we simply, by using this A and D and OR or NOT, using those operators, we can actually limit the universe of existing stock of knowledge, and we can limit those studies that are related to the topic of our own interest. I'll give you an example later on, but for example here, you're interested in looking for, like, for example, your social protection program is related to increase the learning outcomes of the children of the household. And you want to look for, okay, what are those studies that are implemented in developing countries like our own, and then using pilot studies, and then following a randomized control trial or any other method whatsoever. But what are the results that they found? So I'm looking for those results in the existing search engines on internet. तो कभी कभार तो हम गूगल ही करते हैं ना. सो गूगल करने से प्रॉब्लम ये होगा कि गूगल एक ऐसा सर्च इंजन है जिसके ऊपर पब्लिश एंड अनपब्लिश स्टफ भी अवेलेबल है. तो कभी कभार बड़ा नाइस अच्छा रिपोर्ट भी सामने आ जाती है, लेकिन उसमें मसला ये है कि हमें ये नहीं पता नहीं है बेसिकली कि पब्लिश्ड है कि नहीं है पब्लिश्ड. और इन्फॉर्मेशन हम उससे ले भी सकते हैं, बेशक आप ले लें उससे, लेकिन हमें ये चीज देखना पड़ेगा कि इज दैट अ पब्लिश्ड मटेरियल. व्हाट डू वी मीन बाय पब्लिश्ड? बेसिकली that has to be peer reviewed, substantially peer reviewed, and to be owned by a particular platform such as the World Bank, such as the uh, international organizations or journals basically. So journals are a very good source for publishing ideas and research that is done, you know, rigorously. So for example, you're searching, so when you type in the keywords, you type education and scholarship और स्टाइपेंड, एंड आपने स्कॉलरशिप और स्टाइपिंग दोनों को के दरमियान आर को कनेक्ट कर दिया और आपने ब्रैकेट में बंद कर दिया, एंड यहाँ इसको आपने एजुकेशन के साथ एंड से मिला दिया. So it will actually give you a very subset of the existing stock of knowledge that will be purely related to education and either scholarship or the stipend program, because we are interested that scholarship and stipend are correlated with each other. So कहीं पर एक स्टडी है जिसने एजुकेशन और स्कॉलरशिप का इम्पैक्ट देखा है, वो भी मैं पढ़ूंगा. और कहीं पर एक स्टडी है जिसका एजुकेशन और स्टाइपेंड के साथ कोई रिलेशनशिप है, वो भी हम पढ़ेंगे इस तरह. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपके पास बहुत बड़ी दुनिया है, लिटरेचर की बहुत बड़ी दुनिया है. उसको लिमिट हम कैसे करते हैं? that okay, I give a condition that I need actually studies that have these keywords in the title of the paper or in the abstract of the paper. अगर रिपोर्ट है तो उसकी एग्जेक्टिव समरी के अंदर ये चीजें हैं कि नहीं है, तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं हम. इसी तरह आप आर यूज कर सकते हैं. जब आप आर यूज करते हैं तो आपका यूनिवर्स बढ़ जाता है, क्योंकि यू गिव अ सॉर्ट ऑफ ओपन ऑप्शन कि स्टडी हो जिसमें कंडीशनल कैश ट्रांसफर भी हो, अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर भी हो, ठीक है ना. तो उसमें आपके पास हजारों बल्कि लाखों स्टडीज आ जाएगी. जब आप एंड लगाते हैं दो, तो लिमिट हो जाएगा कि वो ये कंडीशन मीट करेगा कि उसमें ये वाला कीवर्ड भी हो और दूसरा कीवर्ड भी हो. तो कम, जितना कम हो अच्छा है, लेकिन मसला ये है कि वो सिस्टमेटिकली कम हो. ऑल ऑफ अ सडन आप एक कीवर्ड लिखकर तो आपके पास 10 पेपर ही आ जाएंगे, लेकिन जो दुनिया है लिटरेचर की, जो पड़ी हुई है वहां पर ऑनलाइन नेट के ऊपर पड़ी हुई है शायद, वो आपसे आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे. और अगले दिन आप क्लेम करेंगे कि देखो हमने लिटरेचर पढ़ा है जिसमें हमारे पास एविडेंस है. आपसे सवाल पूछा जाता है कि भाई वेब ऑफ साइंस के अंदर अभी रिसेंटली कल पेपर पब्लिश हुआ है जिसने कहा है कि इसकी एविडेंस, मतलब इसका इफेक्ट पॉजिटिव है, और आपने कंक्लूड किया कि नेगेटिव है. हमारे पास क्या जवाब होगा? So to be very honest with the research, as well as our own self, we need to make sure that we exhaust all our energies to search the possible search engine whatsoever we find on internet.
तो उसको हम सर्च करने के बाद बैठ जाएं, डिसाइड कर लें कि ओके ये पेपर जो है 50 पेपर्स हैं, 100 पेपर्स हैं, ये सबसे मोस्ट रेलेवेंट है हमारे केस से, लिहाजा हम अब इसको आगे जाकर थॉरोली स्टडी करेंगे और उन स्टडीज की जो रिजल्ट्स है उसको डॉक्यूमेंट करेंगे किसी सिस्टमेटिक स्टेटिस्टिकल प्रोसेस के जरिए, फिर नतीजा ड्रा करेंगे वहां से। ओके, सो एंड व्हाट आई रेफर टू इज एक्चुअली कि कौन से स्टडीज उसमें फॉल करेंगे, आपने इंक्लूड करना है, कौन से स्टडीज एक्सक्लूड करना है, दैट्स एक्चुअली सिंपली एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन क्राइटेरिया, यू कैन यूज दैट क्राइटेरिया। Here is an example of the a systematic literature review conducted on the condition case transfer and child nutritional outcomes. That's a systematic review and meta analysis. Systematic review means कि उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस शुरू किया, स्टार्ट से पूरे एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज से शुरू किया, उसको लिमिट किया, एक्सक्लूजन इंक्लूजन क्राइटेरिया को यूज करते हुए लिमिट कर करके आखिर में जो कोर पेपर्स रह गए जो स्ट्रांगली रेलेवेंट है उस पर्टिकुलर फील्ड से, इन टर्म्स ऑफ द कॉन्टेक्स्ट भी सेम है, सिमिलर है, सेम नहीं लेकिन सिमिलर है, मेथड्स भी सिमिलर है, कंट्रीज भी सिमिलर है, आपकी जितनी भी कंडीशंस है वो मीट कर रहे हैं, उसके बाद आप उसके ऊपर मेटा एनालिसिस अप्लाई कर लें, right? So that's an aggregate analysis of the findings of those individual studies, right? And that gives you a general picture of what on average all of these studies are telling us. That's such a good thing. अगर आप as a as a government official भी इसको पढ़ेंगे तो आपके पास एक तमाम इंडिविजुअल स्टडीज का एक सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास, यानी एक पिक्चर आ जाएगा, लेट्स से 1 पेजर आ गया आपके पास, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, हमारे पास एविडेंस है। और एंड दो स्टडीज विल बी पब्लिश्ड इन डिफरेंट जर्नल्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो जो क्रेडिबल प्लेटफॉर्म से वहीं पर पब्लिश्ड हो। सो मैं सिर्फ इसको पढ़ता हूँ यहाँ, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किस तरह एब्स्ट्रैक्ट में लिखा है। We search articles published between January 1997 and September 2018 using this ये जितने भी सर्च इंजन्स के नाम लिखे हैं, एफप्री है, आइडियाज है, बहुत सारे हैं, वेब ऑफ साइंस भी है, आप साइंस डायरेक्ट भी है, बहुत सारी सर्च इंजन्स हैं। गूगल स्कॉलर इज अ वेरी कॉमन प्लेटफॉर्म दैट यू कैन यूज। And then they say we include studies using quantitative impact evaluation methods of conditional transfers with sample size over 300। एक कंडीशन ये भी है कि उन्होंने क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट इवेल्युएशन कंडक्ट की है, क्वालिटेटिव नहीं की है, तो हमने उसको लिमिट कर दिया है। आगे जाके वो कहते हैं कि टारगेटेड टू हाउसहोल्ड्स विद चिल्ड्रन अंडर 5 years, ये दूसरा कंडीशन है जिसने फर्दर लिमिट कर दिया आपके पूरे सर्च को। And then with gross domestic product per capita below USD 10, ये चौथा कंडीशन लगा दिया कि जो बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं या उससे बिल्कुल गुर्बत में रहते हैं वो हाउस होल्ड, उनको ही उसको उन्होंने सेलेक्ट कर दिया। तो आपके पास जो स्टडीज अब आएंगी सर्च करने के बाद, जो स्टडीज आएंगी, दो स्टडीज विल बी द मोस्ट रेलेवेंट स्टडीज टू व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन। और उसको उसको बाद में आपने उसके ऊपर मेटा एनालिसिस अप्लाई किया। आई एम गोना टेल यू व्हाट मेटा एनालिसिस इज। सो बेसिकली ये प्रोसेस कैसे चल रहा है, बेसिकली जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास बहुत बड़ा एक सेट आ जाता है स्टडीज का। वो उन स्टडीज में आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ओके एक एक सोर्स है जहां से आपको, कभी कभार आपने सबसे अच्छा एक तरीका ये भी है कि अगर आप सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट कराना चाहते हैं तो आप दूसरी सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू को पढ़ें, किसी दूसरे बंदे ने कंडक्ट कराई है रिसेंटली। फॉर एग्जांपल आप 2023 में कर रहे हैं, 2022 में उस टॉपिक से रिलेवेंट जो सिस्टमेटिक रिव्यू हुई है, डेफिनेटली उसने भी पूरा प्रोसेस किया होगा, तो जो तमाम पेपर उस स्टडीज के अंदर है, एक तो आप वो ले लें। जैसे यहाँ पर हमने साइट किया हुआ है कि 140 पेपर्स एक्चुअली कम फ्रॉम दिस पर्सन बिकॉज दैट पर्सन हैज आल्सो डन अ सिस्टमेटिक रिव्यू, बट अदर देन दैट देयर इज सम एडिशनल रिकॉर्ड्स एंड फ्रॉम एक्सपर्ट्स फ्रॉम स्नोबॉल सैम्पलिंग, आपने लोगों से भी पूछा है तो आपके पास काफी स्टडीज आ गए हैं, लेट्स से 61 स्टडीज आ गए, एंड देन you have records identified through the database searching, which is the big source of literature that actually gives you 2600 over something studies। तो आपके पास तकरीबन टोटल कितने स्टडीज आ गए? बहुत ज्यादा स्टडीज आ गए टोटल। द रिकॉर्ड आफ्टर डुप्लीकेट्स वगैरह जब आप रिमूव करेंगे तो आपके पास तकरीबन 2300 पेपर्स आ गए एक टॉपिक के ऊपर।
और वो कंडीशनल ट्रांसफर्स के ऊपर आ गए इस बंदे ने जो स्टडी कंडक्ट कराई है। अब आप सोचेंगे कि हम 2300 पेपर्स कैसे पढ़े और उनको सिंथेसाइज कैसे कर लें। सो इसका फिर फर्दर प्रोसेस ये है कि आप उसको स्क्रीन कर लें, आप उसके एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ लें या टाइटल को पढ़ लें, उसको यूज करते हुए आप उसको स्क्रीन करेंगे, तो अगर उसका भी क्राइटेरिया आप सेट कर लें जो रेलेवेंट है या रेलेवेंट नहीं है। तो जब आप जो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं, तो आपने लेट से आपने 1600 पेपर्स को रिमूव कर दिया फॉर सम रीजंस दैट दे वर नॉट रेलेवेंट टू योर इंटरेस्ट, टू योर रिसर्च क्वेश्चन। तो जो आ गए हैं, जो जो रेलेवेंट है, उस स्क्रीन हो गए, तकरीबन 600 आ गए। आगे जाके आप फिर क्या करें, एलिजिबिलिटी देख लें कि वो जो आर्टिकल्स है, जो पब्लिश्ड मटेरियल है, वो बुक है, वो पेपर है, वो रिपोर्ट है, उसका नेचर क्या है, बेसिक आपकी जरूरत की चीज है, या सिंपली एक अखबार का कोई आर्टिकल है, जैसे किसी ने ओपिनियन पीस लिखी है जो जिसके अंदर आपको सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो आप एक अलग क्राइटेरिया यूज करें, उसमें एक्सक्लूजन इंक्लूजन का यूज करें कि जो फुल टेक्स्ट आर्टिकल्स एक्सक्लूडेड, नो विद फॉर एग्जांपल नो काउंटरफैक्चुअल, नो स्टैंडर्ड एरर्स। जिन आर्टिकल्स में कंट्रोल ग्रुप नहीं है, फॉर एग्जांपल सिर्फ ट्रीटमेंट ग्रुप बिफोर एंड आफ्टर स्टडीज हैं, थोड़े से कमजोर मेथोडोलॉजी है उसकी, आपने उसको भी इंक्लूड कर दिया। आपने बड़े स्ट्रॉन्ग स्टडीज जो कंडीशनल ट्रांसफर्स के ऊपर हुई हैं, इस बंदे ने वो यहाँ पर रख ली हैं। आगे जाके इन्होंने फर्दर एक्सक्लूजन की है उसमें, लिमिटिंग सेट ऑफ एग्जामिन आउटकम्स एंड ओके, एक फर्दर उसने लिमिटेशन उसको लिमिट कर दिया। तो एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस, the number of studies that were strongly relevant for this particular research questions were 74 studies. N is equal to 74. That actually means that these 74 studies fulfill all those criteria that is set there, and that is related to, let's say, conditional transfers with those households less than 10 USD 10, and let's say developing context and so okay। जब आप ये प्रोसेस करेंगे, तो उसके बाद जो पेपर्स आएंगे उसके ऊपर हम क्या करते हैं, नॉर्मली मेटा एनालिसिस अप्लाई करते हैं। अब आप उसको उसकी एक समरी स्टैटिस्टिक निकालें, समरी है काइंड ऑफ द समरी ऑफ ऑल दोज पेपर्स। मैं आपको उसको रफली इंटरप्रेट करता हूं, आप इसको गौर से देख लें। ये उन स्टडीज की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हमने समराइज किया हुआ है कि स्टडी की टाइप क्या है, ट्रांसफर साइज क्या है, प्रोग्राम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और हर इंडिविजुअल स्टडीज की नंबर है, ऑब्जर्वेशंस क्या है, उन स्टडीज की नंबर है, टोटल इतने स्टडीज है उसमें, और ये उसकी मीन है। दैट मींस कि अगर आप 1997 से लेकर 2018 तक इस विंडो के अंदर जितने स्टडीज हैं उनको एवरेज निकालें, तो उसका एवरेज साइज क्या होगा, या एवरेज उस वेरिएबल का एवरेज क्या आएगा उसमें, और ये उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन मिनिमम एंड मैक्सिमम है। फॉर एग्जांपल द स्टडी सैंपल साइज, टोटल ऑब्जर्वेशन 74 है, जैसे हमने पिछले स्लाइड में बता दिया। दिस इज द एवरेज साइज ऑफ द सैंपल ऑफ ऑल दो 74 स्टडीज। समझ आ रहे हैं आपको? अगर आप कहें कि इसमें तो ऐसे स्टडीज होंगे जिसमें सैंपल साइज बहुत बड़ा भी होगा, हाँ, मैक्सिमम इतने भी सैंपल साइज थे जिसमें 20,000, एज बिग एज 20,000 इंडिविजुअल्स, आई मीन ऑब्जर्वेशंस थे उस सैंपल में। लेकिन मिनिमम सैंपल साइज वाज 322, एंड दिस इज एक्चुअली द एवरेज, राइट? सो आपके पास एक जनरल पिक्चर आ गया कि इन पूरे स्टडीज में एवरेज सैंपल साइज ये है। इसी तरह स्टैंडर्ड डिविएशन भी इसके साथ है, जिसको बाद में आप जब इसके ऊपर रिग्रेशन रन करेंगे तो उसमें यूज करेंगे आप स्टैंडर्ड डिविएशन। नहीं, नंबर ऑफ स्टडीज तो 74, हाँ, स्टडीज इन 74 स्टडीज के अंदर हर स्टडीज का अपना सैंपल साइज है। किसी का 10,000 है, किसी का 12,000 है, किसी का 5,000 है। आपके पास एक एक्स वेरिएबल आ गया, उसका मीन है, उसका एवरेज। अच्छा जी, आगे जाएं तो आप देख लें ईयर ऑफ डेटा कलेक्शन। ये तो एवरेज ईयर आ गया ना हमारे पास, हमारे लिए ज्यादा इंटरेस्ट ये ईयर नहीं है उसका एवरेज कलेक्शन, लेकिन दैट मींस कि 1997 से 2018 तक एवरेज मीन दैट डेफिनेटली बिकम्स 2009। लेकिन टोटल ईयर्स ऑफ द स्टडीज, इन ये स्टडीज जितने साल पे इन्होंने फोकस किया कि कितने सालों में कंडक्ट हुई हैं, बेसिकली ऑन एवरेज ईच स्टडी कंडक्टेड वाज 2.53 years. Each study took this much time to be completed. ये average time है when these studies took. And then published, that's the, when the variable is 0 and 1, minimum and maximum, that actually tells us 1 means published, 0 mean unpublished. Unpublished mean those are maybe reports, those are those
not a journal articles maybe, but some other platforms have actually communicated those studies, maybe some institutional reports also. So that means अब आप इसको interpret कैसे करते हैं? That is the mean of this binary variable that actually tells you that nearly half of those studies were published and the remaining were not published journal articles but maybe communicated through different platforms. अच्छा जी, अब हम let's say that those are the characteristics of the study, but we come to the transfer size, which is a variable of interest, right? Important. The real transfer amount in USD, the average transfer amount, remember that this study actually focusing on the conditional transfer. तो हम ये देखते हैं कि on average जहां जहां पर impact evaluation हुई है, जो pilot projects हुए हैं, उन्होंने transfer in the beginning कितना किया है, amount क्या है. So ये average transfer amount है $121. कहीं पर ज्यादा भी होगा, कहीं पर $900 तक भी है इतना अमाउंट जो डिस्पर्स किया जाता है, और कहीं पर इतना कम भी है जैसे 10, लेकिन दैट्स द एवरेज. एंड सिमिलरली the transfer in terms of the percentage of income, right? So normally हम ये भी interested होते हैं कि अगर एवरेज हाउस होल्ड का इनकम जो है, लेट्स से पाकिस्तान में मंथली जो है 50,000 है और मंथली उनको स्टाइपेंड दिया जाता है 5,000 या 10,000 दिया जाता है, तो हम कहते हैं कि 20,000 ऑफ द एवरेज इनकम वाज एक्चुअली ट्रांसफर टू द हाउस होल्ड. अच्छा जी, ये इसलिए करते हैं कि फर्दर इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो हम उसके डिटेल्स में टेक्निकली नहीं जाना चाहिए. प्रोग्राम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो देख लें. कितने प्रोग्राम्स कंडीशनल थे सर, आप बताएं इस फिगर को पढ़ते हुए. नियरली हाफ ऑफ द प्रोग्राम, 53% ऑफ. थैंक यू. देन हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड कितने थे? हाँ, बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन या वगैरह इस तरह की इंटरवेंशन जिन्होंने बिहेवियर को चेंज किया किसी हाउस होल्ड की वगैरह वगैरह, वो इतने स्टडीज थे इसमें. अच्छा जी, आगे जाएं. कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? On average, what was the mother's age in that particular sample? Which sample? In those 74 studies 70. differently conducted in different countries, different areas, the average mother's age was this much in terms of years. Then the child age was this much. जहां पर children का data भी है तो उसका ये है. Share of the sample urban, 15% of the studies were conducted in urban context, so the remaining 85% studies were conducted in rural context. Child's age 29, ये कैसे हो सकती है? 126, हाँ, maybe that's a good point. आपको पता है कि mean is suffer from the extreme values. अगर यहाँ पर ये है कि ये गलती हो गई होगी इनसे 126 नहीं, ये भी हो नहीं हो सकता है ना, सकता. वो उधर 19 में से लिया एवरेज लिया, वो 58 में से एवरेज है, ये भी डिफरेंस लेकिन है ना. मैक्सिमम मिनिमम से maybe there is some outlier for some reasons, but anyways this should be the average age. So ये कम भी हो सकता है, ज्यादा हो सकता है. अगर हम इस पेपर को गौर से पढ़ेंगे तो डिटेल्स आ जाएगा सामने. मैं इसको शायद बाद में भी पढ़ लूं, डिस्कस कर लूं आपसे. लेकिन एवरेज मींस द एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन अंडर दैट, विद इन दैट सैंपल अंडर द स्टडी. अच्छा जी, बाकी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, तो दिस इज द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दो स्टडीज. अगर हम देखना चाहें कि ऑन एवरेज कहां पर इस तरह की इंपैक्ट इवैल्यूएशन स्टडीज कंडक्ट की जाती हैं, तो आप देख सकते हैं कि 36% of the studies were conducted in Africa, 46% of studies were conducted in Latin America, and 19% studies were conducted in Asia. And because the focus was only in developing countries, so in total this is the distribution. ज्यादातर अफ्रीका में इसलिए हैं, वहां पर ज्यादातर गुर्बत है तो ज्यादातर इंटरवेंशंस की जाती हैं. और आप जब पढ़ेंगे भी तो आपको ज्यादा पेपर्स जो इंटरवेंशंस की पेपर्स मिलेंगे आपको इम्पैक्ट इवैल्यूएशन की, अफ्रीका से मिलेंगे और लैटिन अमेरिका और एशिया से ही मिलेंगे ज्यादा. आई हैव अ क्वेश्चन सर, अच्छा, जब हम लिटरेचर करते हैं, रिव्यू करते हैं, तो वो फोकस यूजुअली ऑन पब्लिश डेटा ना. तो अगर ये 50% पब्लिश हुआ और 50% का कोई पता नहीं है, तो इसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी? मतलब दैट्स अ गुड क्वेश्चन. क्रेडिबिलिटी क्या होगी? अगर ये 50% है तो इसका मतलब 30 पेपर होंगे जो 74 में से जो क्रेडिबल है. नहीं, हमारे जो पिछली स्क्रीनिंग प्रोसेस के नतीजे में हमने डिसाइड किए हैं कि दीज आर दोज पेपर्स व्हिच आर वेरी यूजफुल फॉर अस. एंड इसका मतलब है कि अनपब्लिश्ड डज नॉट मीन दैट देयर इज नो प्लेटफॉर्म दैट ओन दीज पेपर्स. जैसे वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है या कोई दूसरा रिपोर्ट है, कुछ पब्लिश भी है लेकिन गवर्नमेंट स्टडीज हैं, गवर्नमेंट ने कंडक्ट कराई हैं. अब गवर्नमेंट ने उसको किसी जर्नल में पब्लिश नहीं कराई है फॉर एग्जाम्पल,
लेकिन एक लेट्स से तंजानिया में कोई इंटरवेंशन हुई है और उसकी इवेल्युएशन, एंड लाइन इवेल्युएशन आई है आपके पास, और उन्होंने आरसीटी टाइप कंडक्ट कराई है पायलट। या पाकिस्तान में कोई लेट्स से कोई प्रोग्राम चल रहा है किसी डिस्ट्रिक्ट में, और उस फंडिंग एजेंसी की रिक्वायरमेंट ये है कि आप जब मिड लाइन सर्वे भी करेंगे, बेस लाइन भी करेंगे और एंड लाइन भी करेंगे, और फिर एंड लाइन रिपोर्ट भी पब्लिश कराएंगे, और अगर वो डिजाइन ऐसी है कि जो बहुत अच्छी डिजाइन है उसमें, सो दैट मीन्स कि वो स्टडी आपके लिए बड़ी यूजफुल है, और देर इज एन देर इज ओनरशिप ऑफ दैट स्टडी। ये ऐसा भी तो नहीं है कि कोई ओनर नहीं है और आपको ऐसी ही मिली है। सो ये याद रखें कि दीज स्टडीज आर आउट ऑफ दो 74 सिलेक्टेड स्टडीज व्हिच वी बिलीव आर क्रेडिबल। एक्चुअली क्रेडिबल है तो तब ये है एकेडमिक में लेते हैं क्रेडिबल इसको, क्योंकि ये तो प्री रिक्विजिट होता है कि शुड बी पब्लिश्ड और पब्लिश भी किसी गुड जर्नल में, तो ये अनपब्लिश तो बिल्कुल भी वो एकेडमिक में तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। हाँ, वैसे एक और भी चीज इसमें याद आ गई बड़ी, जो वर्किंग पेपर्स है ना, नॉर्मली वर्किंग पेपर्स आर नॉट, दे आर समटाइम्स ऑनलाइन वेल इन एडवांस, लेकिन दे आर नॉट पब्लिश्ड येट। वो अच्छे अच्छे जर्नल्स जो हैं, दे टेक 5 to 6 years to get your paper published, but before that they will ask you to review or maybe to improve it every time. So those working papers are often there on the websites of each institution. आप उन वर्किंग पेपर्स से बड़ा फायदा ले सकते हैं, क्योंकि उन वर्किंग पेपर्स में तमाम रिसर्च प्रोसेस होता है, डिटेल्स होता है, एंड दैट वर्किंग पेपर इज प्रेजेंटेड इन लॉट ऑफ कॉन्फ्रेंसेस एंड एवरीवेयर। आप उसको बिल्कुल साइट भी कर सकते हैं बेशक, मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलाई कर सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इज दैट अ पब्लिश्ड आर्टिकल, नॉट येट अ पब्लिश आर्टिकल, बट दैट्स अ वर्किंग पेपर विच इज अ वेरी गुड पेपर। आप आजकल देख लें तो जो अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू है या जो बड़े बड़े जर्नल्स हैं, वो जब जर्नल पब्लिकेशन की स्टेज तक आप जाते हैं तो आपका वर्किंग पेपर तकरीबन 4 5 6 साल लेता है कि वो इस प्रोसेस से गुजर जाए, जो रिफाइनिंग प्रोसेस है। तो मीनवाइल हम उनको पढ़ते हैं, उनसे फायदा भी ले सकते हैं। सो इन प्रोसेस रिसर्च भी कह सकते हैं आप उसको, लेकिन दैट मीन्स अ क्रेडिबल रिसर्च। Preprint, exactly, very good. That's what we normally refer to, preprint or online version of something which is not yet published. But sir, जी जी, हाँ, लेकिन अफ्रीका की 74 टोटल ऑब्जर्वेशन अफ्रीका की नहीं है, अफ्रीका का शेयर उसमें ये है। हाँ हाँ, मिनिमम जीरो मीन की अगर अफ्रीका से है तो उसको 1 लिखा है सामने, अगर अफ्रीका से नहीं है तो 0 लिखा है। जैसे हम जेंडर को 0 1 लिखते हैं, इसको बाइनरी वेरिएबल कहते हैं, डमी वेरिएबल आप कह लें। आसानी के लिए हम इस तरह करते हैं कि 0 1 लिखते हैं, तो जब आप उसको स्टेटिस्टिकली देखते हैं तो उसका रेशो आएगा आपके पास। फॉर एग्जाम्पल 0.36 आ गया तो आप सिंपली कह लें कि 100 है और ये 0 है, तो आपके पास ये 36% आ गया, एक ही चीज है। तो नॉर्मली हम मीन को क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, अगर वो डमी वेरिएबल है तो दैट मीन शुड गिव यू अ रेशियो ऑफ दैट, जो प्रोपोर्शन है। जी जी सर, मैं उनके क्वेश्चन का आंसर ऐसा करना चाहूंगी कि हमारे पास एक विंग है हमारा कंप्लीट PRU के नाम से। सर, वो प्रोजेक्ट रिसर्च यूनिट के नाम से है, जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनकी जो इंटरवेंशन हुई है रिगार्डिंग सोशल प्रोटेक्शन, उसमें हमारा पूरा एक विंग है जो कि रिसर्च के ऊपर हमेशा लगा हुआ है। बट उनके भी पेपर्स ऐसे हैं, वो पब्लिश नहीं हुए हैं, बट वो हमारे प्रोग्राम के लिए या उसकी इंटरवेंशन में मजीद बेहतरी के लिए जो है वो रिसर्च हो रही है। तो वो पब्लिश नहीं हुआ, बट वो वैलिड है, अथेंटिक है ये रिसर्च। जी जी, बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं जो बड़े अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो आप कह लें कि आप जर्नल आर्टिकल नहीं होगा, लेकिन दैट दैट शुड बी अ वेरी गुड सोर्स फॉर योर लर्निंग। आगे जाएं, ये तो हमने समरी स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है ना, यानी दैट इज द जस्ट अ समरी ऑफ दो स्टडीज। अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा एवरेज बताएं कि क्या क्या ट्रेंड है इन स्टडीज में ना, कौन से साल में ज्यादातर होते हैं, कंडीशनल ट्रांसफर के हैं, तो उसके बाद आप इसके ऊपर मेटा एनालिसिस अप्लाई करें। दैट मीन्स कि उन स्टडीज को आप जस्ट लाइक अ क्वांटिटेटिव डेटा कंसिडर कर, ठीक है ना। इन वेरिएबल्स को जो हमने पढ़ा, वहां पर हर एक वेरिएबल है आपके पास और उसके बाकायदा उसकी इफेक्ट साइज जो है, उसके कोएफिशिएंट का मैग्नीट्यूड है वहां पर होगा। तो आपने एक शीट जनरेट कर ली है और उस शीट को स्टाटा या SPSS या किसी भी सॉफ्टवेयर के जरिए आपने उसको उसके ऊपर रन कर सकते हैं। और जब आप रन करेंगे तो आपके पास उसका रिजल्ट आ जाएगा। दैट मीन्स कि आप उन वेरिएबल्स का जो एवरेज वेरिएबल है, क्या वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, सिर्फ ये देखना चाहते हैं। इसमें आप कोई कोवेरियंस नहीं देखना चाहते हैं कि कोई दो वेरिएबल्स आपस में कोवेरी करते हैं कि नहीं करते, नहीं। आपने सिर्फ हर उस वेरिएबल की डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स निकालनी है, लेकिन विद वेदर दैट्स स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और नॉट, ये हमारे लिए ज्यादा इंफॉर्मेटिव है इस केस में। सो अगर हम देख लें
So that's the meta analysis results. And ये जो वेरिएबल्स आपके सामने है ना, these are the outcomes of interest जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं. लेट्स से कि ये स्टडी इसमें इंटरेस्टेड थी कंडीशनल ट्रांसफर में, और ये देखना चाहती थी कि बच्चों के हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट है उसका. तो बच्चों के ऊपर जो इफेक्ट है उसको हम नॉर्मली मेजर करते हैं हाइट फॉर एज, वेट फॉर एज, एंड ये जो स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल्स हैं WHO के, आप हम इसको भी यूज करते हैं, स्टंटिंग, वेस्टिंग वगैरह वगैरह. और ये इफेक्ट साइज जो है, ये बेसिकली दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ द इफेक्ट साइज, कि वो जो हर स्टडी ने इंडिविजुअली रिपोर्ट किया है. कुछ स्टडीज ने कहा है कि जीरो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कंडीशनल ट्रांसफर ऑन द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड, बट सम स्टडीज हैव रिपोर्टेड you know that there is effect on the children, but how much is that? So we say the average was this much. So that's the effect of cash transfer program on nutrition outcomes. So this is the effect size. So that means on average, using all those 74 studies, we come to the conclusion that receiving conditional transfer will increase है ना, ये हाँ positive है ना, 0.03 will increase the health of a child in terms of height for age by 0.03 standard deviation points, because ये standardized variable है ना, Z है, normalized variable है, इसलिए हम उसको standard deviation points में interpret करते हैं. अब आप कहेंगे कि ये ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स है, लेकिन आप सिंपली देख लें कि अगर नेगेटिव है तो इफेक्ट नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है. दूसरी चीज जो हमें देखनी चाहिए सबसे जरूरी है, वो है पी वैल्यू. ये पी वैल्यू उस इफेक्ट की सिग्निफिकेंस बताती है, लेकिन ऑन एवरेज के दोज इफेक्ट्स वर सिग्निफिकेंट नॉट. एक इंडिविजुअल स्टडी की बात नहीं हो रही, उन 74 स्टडीज की एवरेज इफेक्ट की बात हो रही. सो अगर पी वैल्यू आपके 0.03 है, so that actually indicates that somehow you can reject the null hypothesis and you can draw a conclusion that yes, this is statistically significant with some 95% confidence interval. ठीक है, और ये कॉन्फिडेंस इंटरवल भी दिया गया है, तो हम इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं? 0.00 लोअर बाउंड है कॉन्फिडेंस इंटरवल, 0.05 अपर बाउंड है. मैं इसको ऐसे इंटरप्रेट करता हूं, आप इसको देख लें. अगर हम 100 स्टडीज कंडक्ट कराएं, सिमिलर कंडीशंस में स्टडीज कंडक्ट कराएं, सो ऑन एवरेज मैं क्लेम करता हूं कि जो इफेक्ट साइज होगा वो 0.00 और 0.05 के दरमियान ही होगा. और मुझे पता है कि वो HAZ जो है वो स्टैंडर्डाइज वेरिएबल है, तो जीरो के राइट साइड पे जितना भी इफेक्ट होगा मेरे लिए वो पॉजिटिव है, बिकॉज दैट्स नॉट अ नेगेटिव. वो किसी ना किसी तरीके से वो वेरिएबल बढ़ाता है बेसिकली. सो मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? 95% है. अगर आप मुझे कहें कि नहीं सर हमें ज्यादा प्रिसाइज कंक्लूजन ड्रा करें 99%, तो हो सकता है कि मैं थोड़ा सा उसमें हिचकिचाऊं, लेकिन मैं 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल भी आपको ले सकता हूं, यानी ये बाउंड में बड़ा कर सकता हूं कि कुछ स्टडीज हो सकते हैं कि नेगेटिव साइड पे भी आ जाए. लेकिन यहां आपको जो दिखाई दे रहा है, you reject the null hypothesis that there is no effect, right? You conclude that there is an effect. How much is that effect? On average 0.03 standard deviation points. और याद रखें कि टोटल जो है ना z का वो जो वेरिएबल है उसका मीन 0 है, 1 स्टैंडर्ड डिविएशन. टोटल क्या है? 1 standard deviation. So 0.03 standard deviation enhancement in that particular variable is something really big in this sense. इसी तरह दूसरे आउटकम वेरिएबल्स हैं आपके पास. WAZ है, वेट फॉर एज है, स्टंटिंग है, वेस्टिंग है. तो जिस तरह भी आपने वेरिएबल को मेजर किया हुआ है, आप उसी तरह उस वेरिएबल को इंटरप्रेट कर लें, सिर्फ आप उसके इफेक्ट को देख लें. फॉर एग्जांपल हम वेस्टिंग को परसेंटेज में हम वहां पर लेते हैं, मेजर करते हैं, और इफेक्ट हमारे पास आया है -1.22, और हमारे पास पी वैल्यू 0.06 है, बिगर है. पी वैल्यू जितनी बड़ी है तो आपको वरी होना चाहिए कि दैट मींस वी लूज स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, लेकिन स्टिल द इफेक्ट साइज इज दिस मच, 1.22. सो मैं कैसे इंटरप्रेट करता हूं? ऑन एवरेज receiving, if a household on average receive the cash transfer, then the vesting of children will decrease by 1.22 percentage, right? Because वो वेरिएबल परसेंटेज में है, परसेंटेज पॉइंट्स में भी नहीं, परसेंटेज में है बेसिक. इसी तरह दूसरा वेरिएबल देख लें, कोई आपके वेरिएबल है, आपके इंटरेस्ट के वेरिएबल्स हैं, तो आप इसको पढ़ लें. अगर आपको इसमें से कोई इंटरप्रिटेशन में कोई इश्यू है तो आप पूछ लें, अदरवाइज आप पी वैल्यूज को देख लें. जहां पर हमारे पास पी वैल्यू 0.01 है, वी आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट द इफेक्ट. यहाँ पर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, और नॉर्मली हम इसके ऊपर 3 स्टार्स लगाते हैं जब वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, एंड वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस विद 99%. हाँ, लेस देन 0.01 है ना, दैट मींस अ मच स्मॉलर वन.
स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस कम होगा उसमें। हाँ हाँ, ये सिग्निफिकेंट, ये इफेक्ट सिग्निफिकेंट। अच्छा आगे जाएं, इस पेपर के इस सिस्टमैटिक स्टडीज के फर्दर जो इफेक्ट्स हैं वो उन्होंने कैलकुलेट की है। आप देख सकते हैं इसको, अगर हम टेबल में देख लें तो देयर आर some outcome variables for which the effect is statistically significant, identified with 1 star, with 2 stars, and sometimes with 3 stars. And you just look at them, you can identify them, that these are these are the variables for which the cash transfer effect was statistically significant. And आपको जरूर देखना चाहिए कि वो डायरेक्शन नेगेटिव है या पॉजिटिव। कभी कभार आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पॉजिटिव है, नेगेटिव आ जाता है, तो काउंटर इंट्यूटिव बन जाता है आपके लिए। ठीक है, मेरे पास इस सेशन के लिए टाइम कम है, तो आई हैव टू रन फास्ट। अच्छा जी, फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस भी फर्दर कर सकते हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस बेसिकली एक रोबस्ट एक सबसेट एनालिसिस है। आप चेक करते हैं कि मैं इंडिविजुअल सैंपल्स में देख लूं, इंडिविजुअल कि एशिया के अंदर सिर्फ जो स्टडीज हुई हैं वहां पर इफेक्ट क्या है, या अफ्रीका के अंदर जो स्टडीज हुई हैं उसके अंदर इफेक्ट क्या है, या बच्चों के अंदर भी आप देख सकते हैं कि एज वाइज भी उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये एशिया का इफेक्ट है उन वेरिएबल्स के लिए जो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया, लैटिन अमेरिका के लिए है एंड सब सहारन अफ्रीका के लिए। तो वी कैन सी हियर दैट फॉर सब सहारन अफ्रीका दिस वेरिएबल appears to be statistically significant, and that means the receiving the conditional transfer actually increase the weight for age on average by 0.09 standard deviation points. अगर आप जैसे देख लेना अंडर 24 मंथ्स बच्चे हैं एज वाइज, तो उनके लिए इफेक्ट ये है। अच्छा जी, जो 24 और 60 मंथ्स के दरमियान बच्चे हैं वहां पर कंडीशनल ट्रांसफर का इफेक्ट ज्यादा है, आई मीन ज्यादा इन द सेंस एंड स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट भी है। इसी तरह आप नो मैक्सिको, अगर आप if there are some reasons that to exclude Mexico from the studies, जो नॉन मैक्सिको स्टडीज हैं तो वो भी देख सकते हैं। लेट्स से आप उसको दूसरा कंट्री भी निकाल दे देख लें, तो दैट्स व्हाट वी कॉल द सेंसिटिविटी एनालिसिस, कि आप उसकी सबसेट के अंदर उसी प्रोसीजर को फॉलो कर लें और देख लें कि वो इफेक्ट वेरी करता है, परसिस्ट करता है, या इफेक्ट बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो जाता है। कभी कभार एक ही कंट्री के अंदर वो इफेक्ट ज्यादा होता है, दूसरे कंट्रीज आप निकाल लें तो इफेक्ट नहीं होता। अच्छा जी, फिर फर्दर एनालिसिस भी कर सकते हैं कि इसमें कैश ट्रांसफर तो है लेकिन कंडीशनल है या अनकंडीशनल है, ये क्वेश्चन तो अभी रहता है ना। तो हम सिर्फ कंडीशनल की सब सैंपल भी देख लें और तो उसमें इफेक्ट देख ले, और फिर अनकंडीशनल में देख ले कि अनकंडीशनल में इफेक्ट ज्यादा है या कंडीशनल में ज्यादा है। तो ये आपको इफेक्ट नजर आ रहा है, ठीक है ना, और ये उसकी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। जो कंडीशनल है उसके अंदर 24 स्टडीज थे, और जो नॉन कंडीशनल है उसमें 22 स्टडीज है बेसिकली। और इसी तरह बाकी के भी आपके एन के नीचे उनके स्टडीज हैं कि वो सबसेट जो आप सेंसिटिविटी चेक करते हैं उसके अंदर कितने स्टडीज हैं जो जिन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि वो कंडीशनल है या कंडीशनल नहीं है। कुछ ऐसे भी होंगे जो मिक्स हैं या कोई इस तरह हैं कि जो कंडीशनैलिटी वगैरह नहीं है उसमें, तो वो इससे एक्सक्लूडेड होते हैं। यहाँ पर एक और भी ग्राफ आप देख रहे हैं, दिस इज अ बिट डिफिकल्ट बट नॉट दैट डिफिकल्ट। इसको फनल प्लॉट कहते हैं। अगर हम इसको देख लेना कि अगर हम एक्स एक्सिस पे देख लें कि इम्पैक्ट ऑन हाइट फॉर एज, एक वेरिएबल ले लें एग्जांपल के तौर पर, और हम उसको चेक करते हैं बेसिकली कि कहीं पर वो क्लस्टर्ड तो नहीं है एक खास तरफ, उसमें कोई बाइस तो नहीं नजर आ रहा इन स्टडीज में। और इस तरफ हम स्टैंडर्ड एरर को प्लॉट कर लें, और ये आप देख सकते हैं कि पब्लिश्ड, नॉट पीयर रिव्यूड, लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल, पूल्ड इन अपर कॉन्फिडेंस इंटरवल वगैरह वगैरह। सो जैसे जैसे आप देखते हैं ना इसमें, तो हमारे पास तकरीबन ज्यादातर स्टडीज जो है ना वो जीरो के इस साइड पे आ रही हैं आपके पास, ठीक है ना, जो कि पॉजिटिव साइड पे आ रही हैं। अगर ये सारी स्टडीज यहाँ पर फॉल करती हैं तो वी शुड बी वरिंग अबाउट मे बी देयर इज सम क्लस्टरिंग इन दी स्टडीज। सो ऑन एवरेज आपको पिक्चर बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि इसमें कोई बाइस नजर नहीं आ रहा। द ग्राफ इज सॉर्ट ऑफ जो 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 प्लॉट है यहाँ पर, इसमें आपको कोई ऐसी क्लस्टरिंग नजर नहीं आ रहा सिवाय कि ये क्लस्टरिंग थोड़े से राइट साइड ऑफ द जीरो है। That means on average, क्योंकि ये variable right of the zero is a good thing to achieve. So most of these studies are reporting a positive effect, and they are actually not clustering around uh, uh, certain characteristics such as सिर्फ published studies नहीं है, यानी कि unpublished studies में भी है कि वो report कर रहे हैं कि positive effect है। So हमारे पास एक बड़ी एक strong evidence आ रही है यहाँ पर।
कि इफेक्ट है, एग्जिस्ट करता है, उसमें कोई ऐसे पोटेंशियल बाइस नजर नहीं आ रहा. And thanks, Esther actually shared this graph with us. This is another literature review, systematic literature review, and the effect is actually plotted in a much nicer way there. You can see this is actually the same thing, I mean, similar thing. This represents the mean, this is the confidence, this is the average effect, this one, and this is the confidence interval, right? आप उसको 95% confidence interval ले सकते हैं, 99 भी ले सकते हैं, 90% भी ले सकते हैं somehow. लेकिन कभी कभार हम उस इफेक्ट को विजुअली देखते हैं तो नंबर्स पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है. ज्यादातर पेपर्स आप देखेंगे तो आपको इस तरह के प्लॉट्स नजर आएंगे, और ये प्लॉट्स ज्यादा आसानी के साथ आप रीड कर सकते हैं. आप सिंपली देख लें दैट्स द इफेक्ट, कितना दूर है कितना दूर नहीं है उसका मैग्नीट्यूड आपको पता चल जाएगा, और फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल भी पता चल जाएगा. अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल बड़ा है, ज्यादा है, तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, उसकी कम है. बहरहाल आई विल जस्ट रीड आउट दिस टू यू. You know what's the outcome of a systematic literature review. ये एक study conduct हुई है. I'm just reading, you know, part of the discussion, and how they read that, you know, we also learn from that. Our results show a small conditional cash transfers of USD 0.60 to 0.1 to 1.8 per immunization visit, delivered through a platform that can easily be scaled in low resource setting like Pakistan, with low administrative cost, can increase immunization uptake by how much? By as much as 6 percentage points. That's the average, right? So whatever is the immunization take up currently is, it can be enhanced by 6 percentage points, right? So if current immunization uptake is, let's say 50% of the people uptake it and others don't, so we can increase it by 6, right? We can take it to 56 there. Acha ji. However, the design details matter. Design details matter because design details of the studies actually vary. Who report those studies that report this effect? Adopting the most effective delivery method, airtime payments, for example, that's one of the method, and structure certain payments. Those, I mean, that method increase if I see as much as or more than shifting from a low USD 11, that means tripling the size of the payment. But is technical details in papers. Again, the takeaway from the paper is that you conclude that there are many studies conducted in this particular area, and those studies actually have found varied effect of the intervention. And now, when we look into those effects on average, what is the general picture that we can have? And for you, I mean, as a government official, वो general picture ज़्यादा ज़रूरी है देखना. And this meta-analysis actually can gives us a more systematic picture कि वो ऐसा है कि जिसमें personal bias भी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो clear हैं इसमें. अच्छा, इसको compare कर लें आप एक ऐसे literature review से जो narrative है. जैसे सर ने पेपर शुरू कर दिया, पेपर के अंदर किसी ने लिखा है कि इंडिया में भी स्टडी हुई है, तो आपने इंडिया वाला पेपर खोल दिया, आपने उसको भी स्टडी किया. उसने लिखा है कि अफगानिस्तान में अच्छा स्टडी हुई है, आपने वो वाला भी खोल दिया. तो ठीक है, आप एक नैरेटिव तो बिल्ड कर रहे हैं उसमें, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे पेपर्स होंगे जो बड़े इंटरेस्टिंग होंगे आपके लिए, लेकिन वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे आपसे. Some other really nice papers plotted here. You can refer to these papers. All of them, most of them are actually focusing on social protection programs, and all of these are systematically conducted, right? Meta-analysis. ओहो, okay. हम देखते हैं कि हमारे पास कितना टाइम रहता है, तो हम एविडेंस गैप में. I have a question. Can I ask? Yes, but give me. हमारे पास कितना टाइम है टोटल एविडेंस गैप मैप के लिए? है कुछ? मैं इसको खत्म कर दिया मैंने, अब उनसे मैप उनको कराना है लैपटॉप के ऊपर, ठीक है ना? लेकिन एक क्वेश्चन तो भी ले लेते हैं. But there is a problem, sir. How we can know about the authenticity of the literature review paper? Sir, as you know that you are serving as an assistant professor in NEST, and most of the research of the were conducted just for a degree.
But there is a problem that how we can know that authenticity of this research. And there is one another problem. So as you know that we are working in practically in a various department. So क्या ये जरूरी नहीं था कि इसकी जगह कोई आप कैसे स्टेटिस्टिकल टूल हमें लेक्चर में इंक्लूड करें ताकि हम एक प्रोजेक्ट को रन करेंगे और इसमें हमारे साथ जो मसले आएंगे हम इस मसले को कैसे मिनिमाइज करेंगे तो क्या इस हम्म, most of people might be publishing for some other reasons, right? So लेकिन ये नहीं है कि आपका कॉन्टेक्स्ट पाकिस्तान है और हम इस बात को जनरलाइज करें पूरी दुनिया के ऊपर. दुनिया में अच्छे स्टडीज भी हो रहे हैं, बुरे स्टडीज भी हो रहे हैं. एंड whenever we are talking about averages, we don't talk about a specific area, a specific study, anything like that. So जब आप भी एवरेज यूज करते हैं, एवरेज में एक्सट्रीम वैल्यूज भी होती हैं, सारी चीजें होती हैं. सो आपकी जो वरी है कि मोस्ट ऑफ द पब्लिकेशन में नॉट बी रिलायबल, इसका कोई ऐसा यार्डस्टिक है जिसको हम यूज कर सकते हैं कि कौन सी स्टडी सबसे अच्छी है? यस, जर्नल्स की जो प्रेस्टीज है, जो क्वालिटी है, वो आपको बताती है बेसिकली. जो अच्छे जर्नल्स हैं बेसिकली उसमें पब्लिश कराना आसान काम नहीं है. इट टेक्स लाइक 5 to 6 years टू डू. लेकिन आपको देखना चाहिए कि कुछ स्टडीज ऐसे होंगे जो अच्छे अच्छे जर्नल्स में भी नहीं होंगे, लेकिन स्टडीज बड़े अच्छे होंगे. आपने स्टडीज को भी पढ़ना है बेसिकली. अब फॉर एग्जांपल आपने एक पीस ऑफ आर्टिकल लिखा, वो मैंने पब्लिश कर दिया, ठीक है ना, लेकिन जो मेटा एनालिसिस करने वाला है उसने पेपर भी तो पढ़ना है कि पेपर के अंदर है क्या. सो पब्लिश्ड डज नॉट ओनली मीन कि पब्लिश्ड हो गया तो उसके अंदर सब कुछ है, तो उसने किसी ने पढ़ना भी तो है, और जो पढ़ेगा तो वो भी तो एक्सपर्ट होगा. उसको पढ़ेगा ना, उसने उसको देखेगा कि उसमें क्या चीज है. अगर उसको यूज करनी है तो हम कहते हैं ना कि इजमा किसी गलत चीज पे इकट्ठा नहीं हो सकती ना. वो इसलिए नहीं होती है कि बेसिकली सारे लोग इस तरह गलत काम भी नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो वो रैशनली हर बंदा उसको जब पढ़ेगा तो असेस करेगा, तो जो अच्छा पेपर होगा वो ऑटोमेटिकली सिंगल आउट हो जाएगा उससे. दूसरा जो आपने कहा कि हाँ ये बात सही है आपकी कि हम ऐसा प्रैक्टिकल कोई टूल दे दें, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर हम आपको प्रैक्टिकल भी दे दें लेकिन उसकी जो वो बैकग्राउंड ना देने, बिहाइंड क्या है. फॉर एग्जांपल हमने मेटा एनालिसिस की बात की है, आपको आइडिया हो गया कि मेटा एनालिसिस क्या है. आपके पास टाइम नहीं है एंड टुमारो यू आर डूइंग समथिंग रियली इंपॉर्टेंट एंड यू डोंट हैव टाइम, so then you can resort to an existing meta analysis and you can rely on that meta analysis and you can make your decision because that's a study already conducted and published. तो ये भी एक अच्छा, लेकिन उस स्टडी को पढ़ना कैसे है, तो ये चीज हमने यहाँ पर देख लिया कि उस स्टडी से हमने कंक्लूजन कैसे ड्रा करनी है, अपने कंक्लूजन तक कैसे पहुंचनी है, यानी उससे हम क्या लर्न कर सकते हैं. तो ये इस सेशन का मकसद बेसिकली ये था. दूसरा है आई एम एक्चुअली if even if there are questions, so we can take those questions later. I'm going to show you how can we do this process and not systematic literature review, but जो impact evaluation की बात होती है हर जगह, हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी स्टडीज हुई हैं आजकल दुनिया में. तो जो प्लेटफॉर्म्स हैं बेसिकली वो आजकल आपको पिक्चर भी देते हैं पूरा, यानी उन एविडेंस की एक एग्रीगेट पिक्चर देते हैं कि कहाँ पर आरसीटीज हुई हैं, कहाँ पर डीआईडी मेथोडोलॉजी अप्लाई हुई, जो भी चीजें हैं, कंडीशनल है, नॉन कंडीशनल है, वगैरह वगैरह. आप उन तमाम स्टडीज को बाकायदा विजुअलाइज कर सकते हैं, और जस्ट बाय लुकिंग एट वन पिक्चर यू कैन सी ओके यहाँ पर जो है ज्यादा स्टडीज हुई हैं, किस कंट्री में ज्यादा हुई हैं, किस टॉपिक पे ज्यादा हुई हैं, वगैरह वगैरह. इस चीज को कहते हैं एविडेंस गैप मैप या एविडेंस गैप मैपिंग. A lot of institutions these days are actually working to generate their own evidence gap maps. जो पॉपुलर हैं वो बहुत सारे हैं, जो वर्ल्ड बैंक वाले भी कर रहे हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस भी कर रहे हैं, यूनिसेफ भी कर रहे हैं. जो इंटरनेशनल इनिशिएटिव है फॉर इम्पैक्ट इवेल्युएशन, जिसको 3IE कहते हैं, इनका मेन फोकस बेसिकली दैट्स अ वर्ल्ड बैंक इनिशिएटिव. द मेन फोकस ऑफ 3IE इज दैट टू collect all those impact evaluation studies and to put them into a public platform so that everybody can access those studies, the results of those studies, and also to map them out कि कहाँ पर कौन से मुल्क में कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर स्टडीज हुई हैं. सो आप ये अंदाजा लगा लें कि आपके पास एक एविडेंस बेस्ड रिसर्च के ऊपर एक लिटरेचर का बड़ा सोर्स अवेलेबल है ऑनलाइन, जहां पर आपको सिर्फ एक फिल्टर करके ना आप अपने मर्जी का जो एविडेंस है वहां पर मैप आउट कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पर एक लिंक है, इसमें जाएं पीछे इसी स्लाइड में मुझे आपको लिखा हुआ है. ये अगर माउस मिल जाए तो आसान हो जाएगा.
मैं अभी लैपटॉप पे करता हूँ, लेकिन आप इसको देख लें। आप इसको देख लें, आपके सामने एक मैप नजर आ रहा है। अभी तो आपको नजर नहीं आ रहा क्लियरली कि ऊपर कॉलम्स पे क्या है और रोज पे क्या लिखा है, लेकिन वो डिफरेंट फिल्टर्स लगाए हैं हमने। आउटकम वेरिएबल्स हैं, जो भी चीजें हैं हमने लगाए हैं कि उन चीजों के ऊपर स्टडीज हैं और कितनी अवेलेबल हैं वो स्टडीज, तो हम उनको देख सकते हैं। मेरे वो माइक पे तो दूसरा वाला। अच्छा, सो बेसिकली ये जो आपको बॉल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, ये बता रहे हैं कि the number of those studies conducted in that particular intersection of two characteristics जो आप जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। फॉर एग्जांपल ये चाइल्ड वर्क एंड लेबर के ऊपर है, the impact of education policies and programs in low and middle income countries। तो अब इस लिंक पे हम क्लिक करके इस लिंक जनरेट कर सकते हैं। आई एम गोना टेक यू टू द 3IE। ये so I'm clicking here, so there is a new website that will open। those of you who have laptops, you can simply go there and you can put your filters there and then you can follow them। बस आप उसको डिस्प्ले कर लेंगे, आ जाएगा। ठीक, वहाँ नजर आ रहा है? ठीक, थैंक यू। सो यहाँ पर आप इस पे जाएं, इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर इम्पैक्ट इवैल्यूएशन। सो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमारे इंटरेस्ट के टॉपिक्स हैं। इसमें अगर आप कंडीशनल ट्रांसफर देखना चाहते हैं, जो भी देखना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। आई विल जस्ट फोकस ऑन द सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स। सो आप यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर एविडेंस गैप मैप पे क्लिक कर लें। इसको फॉलो अप कर लें। सो टोटली आपके पास एक समरी भी आ रही है। अभी तक 12,251 इम्पैक्ट इवैल्यूएशन रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर। उनमें से सिस्टमैटिक रिव्यूज भी इतने हैं, जो एविडेंस गैप मैप्स हैं वो इतने हैं, मैप्स जनरेट हुए हैं। यहाँ पर कौन इम्पैक्ट, ओके। सो नाउ अब हम क्या करते हैं कि इसमें आप टॉपिक चूज कर लें, क्योंकि हमारा टॉपिक यहाँ पर होगा, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एजुकेशन है, एनर्जी है, वगैरह वगैरह। आप इसको यहाँ ब्राउज कर लें तो सोशल प्रोटेक्शन आ जाएगा। मैं सोशल प्रोटेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा जी, आपको यहाँ पर उन स्टडीज की डिटेल्स भी आ रहे हैं। अभी मैप तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन डिटेल्स आ रही है। मैंने चूंकि सोशल प्रोटेक्शन पे क्लिक किया हुआ है, तो जितने भी स्टडीज सोशल प्रोटेक्शन के ऊपर है वो आ रहे हैं। अगर मैं फर्दर फिल्टर्स लगाना चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ, मैं बाद में लगा लूंगा। स्टडी की टाइप क्या है, कि वो इम्पैक्ट इवैल्यूएशन है या सिस्टमैटिक रिव्यू है वगैरह वगैरह, या एविडेंस गैप मैप्स है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, एविडेंस गैप मैप पे क्लिक करता हूँ। एक डिस्क्लेमर आ रहा है, इसको आप चेक कर लें वो। अच्छा जी, अच्छा। तो फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग पीसफुल सोसाइटीज एंड एविडेंस गैप मैप, ये सारे सोशल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इंटरवेंशन ऑन राइट रिलेटेड आउटकम्स, इसमें से जो रेलेवेंट है वो चूज कर ले। हम उसको हम इम्प्रूविंग फूड सिक्योरिटी इन ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग्स, एविडेंस गैप मैप।
अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जिसमें हम मैप उसको मैप करते हैं। मैं इसको देख रहा हूँ अभी। अम, आप में से किसी ने जनरेट तो नहीं किया हुआ उसको यूज करते हुए? ओके। जी, ये, हाँ, मैंने शायद इस पे नहीं किया। हाँ, ये है गो टू मैप यूआरएल। सो ये ऑप्शन है, उस पे आप जाएं। थैंक यू। सो आपके सामने एक बड़ा अजीब सा बड़ा लंबा काइंड ऑफ एक टेबल नजर आ रहा है। बड़ा मैट्रिक्स है, इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं। उसको यहाँ से नजर नहीं आएगा आप लोगों को, लेकिन आप उसको कम ज्यादा कर सकते हैं जब हम इसको ब्राउज करते जा रहे हैं। सो ये यहाँ पर आउटकम्स हैं, हम देख रहे हैं गवर्नेंस है, सोशल कोहेशन है, वायलेंस रिडक्शन है, ह्यूमन सिक्योरिटी है, वगैरह वगैरह। ये एक त्रिआई ने मैप जनरेट किया हुआ है। और ये इंटरवेंशंस की टाइप है यहाँ पर। पीस एजुकेशन है, पीस मैसेजिंग एंड मीडिया है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इंटरवेंशन है, इंटर ग्रुप डायलॉग है, सोशल इंक्लूजन वगैरह वगैरह। सो बहुत सारे इंटरवेंशन हैं, आप रोज में देख सकते हैं ये इंटरवेंशन। अगर किसी खास इंटरवेंशन के अंदर आपको कोई बॉल नजर नहीं आ रहा, दैट एक्चुअली आइडेंटिफाइज कि उसमें बहुत कम स्टडीज हैं जो कि पब्लिश हुई हुई हैं। और जो हुई है वो कौन कौन सी है वो भी आपको उसके ऊपर आप क्लिक कर ले तो नजर भी आ जाएगा। जब आप किसी ब्लॉग पे ऊपर क्लिक करते हैं तो वो आपको ये भी बता रहा है कि वो सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू है, या आप उसको फर्दर भी फिल्टर कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, उन स्टडीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप यहाँ पर। हमने अभी फिल्टर नहीं लगाया। फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप उन इंडिविजुअल स्टडीज में भी जा सकते हैं फर्दर, जो भी स्टडीज कंडक्ट हुई हैं। तो एक तो आपको इससे ये पता चल जाता है कि उन स्टडीज का साइज क्या है, ऑन एवरेज कितनी स्टडीज कंडक्ट हुई हैं इसमें। फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे इसको ब्राउज करते जाएंगे तो आपको फील होगा कि कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं, यानी कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसके ऊपर कोई स्टडीज अवेलेबल भी नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रांजिशनल जस्टिस प्रोसेस, कोई स्टडी अवेलेबल नहीं है अभी तक इसके ऊपर। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर एक गैप है जो कि नजर आ रहा है जिसके अंदर स्टडीज कम है। कहाँ पर स्टडीज बहुत ज्यादा हैं? तो अभी हम कंडीशनल ट्रांसफर की तरफ जाएंगे तो उसमें स्टडीज काफी ज्यादा होंगे। ये एक्चुअली ऑर्डर्ड हैं अल्फाबेटिकली शायद। सिविल सोसाइटी से रिलेटेड हैं, इसमें इंटरवेंशंस हैं। सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंटरवेंशन है। और नीचे एक की भी आ रहा है आपके पास कि कौन सी स्टडीज इम्पैक्ट इवेल्युएशन के हैं, कौन सी स्टडीज हाई कॉन्फिडेंस के साथ रिपोर्ट करती हैं, कौन सी मीडियम के साथ, कौन सी लो के साथ, और कौन सी स्टडीज जो है प्रोटोकॉल फॉलो करती हैं इस तरह। सो जो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ एविडेंस है ऑन सोशल प्रोटेक्शन लेट से, तो आप उनको फर्दर उसको यहाँ पर बहुत यूजफुली कर सकते हैं। मैंने तो उसको फिल्टर नहीं किया, अब मैं यहाँ पर फिल्टर करने लगा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एशिया एंड पैसिफिक में इंटरेस्टेड हूँ, या सब सहारन अफ्रीका में हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम उधर क्लिक करते हैं, सब सहारन अफ्रीका पे क्लिक करते हैं। कंट्रीज अगर मैं कोई ऑप्शन दे दूं तो ठीक है, अदरवाइज सारे कंट्रीज सब सहारन अफ्रीका में जो है वो आ जाएंगे। अब मैं ये आइडेंटिफाई करता हूं कि डिफरेंसिंग यूज करते हैं वो स्टडीज, या एक्सपेरिमेंटल है, क्वाज़ा एक्सपेरिमेंटल है, फिक्स्ड इफेक्ट एस्टिमेशन है, इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल्स है। ये जो आपको सारे नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ये वो मेथड्स हैं बेसिकली जिसको हम इम्पैक्ट वैल्यूएशन मेथड्स कहते हैं। तो कुछ मेथड्स आप समझते हैं कि बड़े स्ट्रॉन्ग मेथड्स हैं, कुछ वीक हैं। आप ऑल क्लिक कर ले तो पता चल जाएगा कि ओवरऑल कितनी स्टडीज कंडक्ट हुई हैं इस एरिया में। पॉपुलेशन भी देख लें कि अगर जो जो टारगेट पॉपुलेशन है उसकी क्या है। बेसिकली माइग्रेंट्स हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, वगैरह वगैरह। और आप फर्दर भी अपने इसकी स्कोप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लोकल लेवल पर हुई हैं या मल्टी लेवल हुई हैं, नेशनल है, सब नेशनल है, मे बी रीजनल लेवल पे स्टडीज हुई हैं ऐसी। सो अब हमने यहाँ पर यहाँ तक आइडेंटिफाई किया, हम इसको अपडेट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा। सो जो आपको नजर आ रहा है बेसिकली, so there are some studies like this, there are many studies, these are impact evaluation studies. Impact evaluation, so in this particular area, for example peace messaging and media, uh, one study was this is the study conducted, and उस study की detail आ रही है, ये भी study है, ये भी हुई है।
ठीक है। और इन स्टडीज को अगर हम आइडेंटिफाई कर ले कि मेथडोलॉजी क्या है, कि वहां पर आप फिल्टर लगा ले, उसकी मेथडोलॉजी को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ जो डिफरेंट कलर्स की नजर आ रही हैं, ये कुछ जो रेड आपको नजर आ रही है, ये सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू चाहिए तो क्विकली आप देख लें उसमें से जो सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू है उन्हीं को पिक कर लें आप। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस स्टडीज के अंदर जाएंगे, 4 सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू है इसमें। उन उन सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सैकड़ों पेपर्स भी मिल जाएंगे जो बिल्कुल थारोली स्क्रीन पेपर्स होंगे जो उन्होंने पढ़े हैं बेसिक। So there are a lot of other topics. We could probably go to conditional case transfer अगर कोई topic इसमें है. There are so many topics we can browse them. Case transfer and subsidies ये है ना, ये case transfer and subsidies plus and financial exclusion ये. So ये आपके पास conditional बल्कि कैश ट्रांसफर के ऊपर है. दीज आर द आउटकम्स रिलेटेड टू सोशल प्रोटेक्शंस जिनके ऊपर ये स्टडीज हुई हैं. तो आपके पास ये डिफरेंट एरियाज है जिसके अंदर स्टडीज हुई हैं. नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा हुई हैं. यहाँ जो गैप नजर आ रहा है ये क्यों है बेसिकली, मतलब ऊपर जाएं आप, टॉप पे जाएं, ये कॉलम्स आप पढ़ लें बेसिकली कि इंडिविजुअल वेरिएबल्स क्या है, आउटकम वेरिएबल्स वो आप देख सकते हैं कि उन उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर वो फॉल करती हैं कि नहीं करती. तो जो गैप है एग्जैक्टली आपको वो वहां पर आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, और दूसरा सेचुरेशन भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. गैप तो ऑलरेडी होता है नॉर्मली, लेकिन ये भी देखना पड़ता है कि कौन से एरिया में ज्यादा सेचुरेटेड है काम, लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, लोगों ने कम काम किया हुआ है. तो जैसे जो सोशल प्रोटेक्शन एरिया, इसमें काफी सारी इंटरवेंशन हुई हैं और बहुत सारी स्टडीज अवेलेबल है. ये तो एक प्लेटफॉर्म है जो आपको एविडेंस गैप मैप दे रहा है. यूनिसेफ का अपना एविडेंस है, यहाँ पर लिंक भी है, उसको आप क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं. वो अपने जो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है उसके अंदर जो रिसर्च हुआ है उस रिसर्च के ऊपर मैप्स अवेलेबल है, आप उनको क्लिक करके ब्राउज कर लें, आपके पास पूरी डिटेल्स आ जाएंगी. सो ये आप जरूर इसको ना सब्सक्राइब कर लें, जो 3IE है, इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर इम्पैक्ट इवैल्यूएशन, वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है. And they have a lot of studies, and all those studies are publicly available. You can download those studies. For example, मैं किसी में इंटरेस्टेड हूँ तो मैं उसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ, उस पब्लिकेशन को डायरेक्टली भी जा सकता हूँ, मुझे चाहिए उसको मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ, कुछ भी है. तो ये स्टडीज सारी अवेलेबल है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर. क्यों ये इस तरह का सर्च जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए कंपेयर टू रफली गूगल स्कॉलर यूज करने का? इसलिए कि गूगल स्कॉलर के ऊपर वो सारे स्टडीज होंगे जो शायद वो इम्पैक्ट इवैल्यूएशन स्टडीज नहीं होंगे, वो भी आ जाएंगे आपके पास. यहाँ प्योरली फोकस ऑलरेडी उन्होंने इस चीज को किया हुआ है, यानी कि जो सर्च में नॉर्मली करता हूं एज एन इम्पैक्ट इवैल्यूएटर, वो काम 3IE ने किया हुआ है मेरे, और उन्होंने सारी चीजें यहाँ प्रोड्यूस किए हुए हैं. तो मेरा सिर्फ काम ये है कि मैंने उसके काम के अंदर सर्च करना है. तो वो जो काम, जो टाइम कंज्यूमिंग काम है, वो ऑलरेडी हो चुका है, और उन्होंने बड़े लोग हायर किए हैं. एंड आई हैड द प्रिविलेज टू वर्क विद देम व्हेन आई वाज डूइंग PhD एज वेल. सो उन्होंने काफी लोग हायर किए हैं, और वो उनसे मेटा एनालिसिस भी करवाते हैं और बड़े केयरफुल स्टडी कंडक्ट कराते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में कराते हैं, और वो सारे स्टडीज वहां पर जाके उसको पब्लिश कराते हैं. ये पब्लिश ना करें, ये वो स्टडीज हैं कि ये पब्लिश अपने अपने जर्नल्स में हुए हैं. कोई जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में पब्लिश हुई है, कोई AER में पब्लिश हुई है. लेकिन यहाँ उन्होंने इसलिए रखी है कि हमारा यूनिवर्स ऑफ सर्च जो है वो थोड़ा सा लिमिट हो और उसके अंदर हम उसको देखें. इसके अलावा भी है दूसरे, अगर मैं जाऊं उसमें, ये सारे मैप्स जो जनरेट हुए, ये मेरे ख्याल में इसका लिंक ये है, इस पे आपने क्लिक किया होगा, आपके पास जिनके पास लैपटॉप्स हैं आप उसको फॉलो करते जाएं, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें उसके अंदर है. ये यूनिसेफ का है, उनका भी एक पोर्टल है पूरा स्टडीज का है. तो अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट वहां पर लाई करता है तो ये भी एक मैप है आपको, जैसे मैंने वहां स्लाइड भी आपको दिखाया, वो यहाँ पर बड़ा भी कर सकते हैं. अब देख लेना, यू कैन सी अ लॉट ऑफ स्टडीज देयर. अब आप इसके ऊपर उसको होवर करें माउस को तो आपके डिटेल्स भी आ जाएंगे कि 2 सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू है, 1 RCT कंडक्ट हुई है, एक क्वेजा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है. क्वेजा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन मीन की परफेक्टली RCT भी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन वो क्या है कि नेचुरल एक्सपेरिमेंट हो सकता है, जैसे जिसने DID यूज किया है या रिग्रेशन डिसकंटिन्यूटी यूज किया हुआ. अच्छा जी. तो जो जहां पर साइज बड़ा है तो आपको इंडिकेट करता है कि स्टडीज भी ज्यादा है उसके अंदर, और किस तरह के हैं. 4 क्वाजा एक्सपेरिमेंटल है और एक जो है सिस्टमेटिक रिव्यू है. तो आप ब्राउज करते जाएं और देखते जाएं, अपने वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट को देखते जाएं. एक मैट्रिक्स है,
ऊपर भी आउटकम्स हैं और इस तरफ आपके पास एरियाज हैं जिसके ऊपर काम हुआ है, हाउस होल्ड, फैमिली से रिलेटेड है, जो भी है, और नीचे आपके इसकी की दिया गया है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है बेसिकली जो आप कंप्यूटर पर बैठकर उसको सर्च करें और आपको उसमें कोई हेल्प भी चाहिए, मतलब आपको माउस चाहिए सिर्फ, उसको क्लिक करना चाहिए, पढ़ते जाएं और देखते जाएं बस, आपके पास स्टडीज आ जाएंगी। और जस्ट बाय लुकिंग इनटू द मैप हियर, आपको क्या नजर आ रहा है वैसे इस मैप? आपको ये पूछना चाहिए कि सबसे बड़ा जो बॉल्स नजर आ रहे हैं टॉप रो पे, ये क्या है, ये कौन सा एरिया है कि जिसके ऊपर इतनी ज्यादा फोकस किया गया है? यस, कैश ट्रांसफर के ऊपर ज्यादा किया गया है, आप देख सकते हैं ना। तो यही फिर आप इसके अंदर भी देख सकते हैं कि विद इन कैश ट्रांसफर कंडीशनल पे ज्यादा फोकस है, नॉन कंडीशनल पे ज्यादा फोकस है, वगैरह वगैरह। और कौन सा एरिया है जिसके ऊपर बहुत कम, थोड़े थोड़े स्टडीज हुए हैं और कहीं पर तो हुई भी नहीं है, लेकिन लेट्स से अगर हम इसमें से किसी को पिक कर लें, ये एरिया है एक्सटेंडिंग द ड्यूरेशन ऑफ द स्कूल डे। ये एक इंटरवेंशन हो सकती है, तो इस तरह की इंटरवेंशन भी हुई हैं, तो स्टडीज इसके ऊपर कम हुई हुई है। सर आपका सवाल है? जी जी सर। इसमें ये है बेसिकली कि जो जो कंपैरिजन है ना, उसका उसूल ये होना चाहिए कि हम एप्पल को एप्पल से कंपेयर करेंगे तो तब की कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। एक तो ये है वैलिड कंपैरिजन, ये है अगर हम एक तरफ इंटरवेंशन करते हैं किसी हॉस्पिटल में और एक तरफ स्कूल में इंटरवेंशन करते हैं और हमारा आउटकम सेम है, कि हम कहें कि बच्चों की हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट है, फिर तो ठीक है आप देख लें। लेकिन अगर आपका आउटकम भी डिफर करता है, फॉर एग्जाम्पल इंटरवेंशन डिफर करता है, तो आउटकम भी डिफर करेगा, ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होना चाहिए। अगर हम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कंपैरिजन करते हैं कि मुझे लेट्स से मेट्रो बस बनाना है, या मुझे ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन करानी है कि जो जैसे नॉर्मल बसेस चलती है उनको हम सब्सिडाइज कर लें, और ये देख लें कि लोगों को बेनिफिट्स किस में ज्यादा है, वो आप कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि आपका आउटकम सेम है बेसिकली। तो आप उस उन दोनों स्टडीज को इंटरवेंशन कंसिडर कर लें और उनको दोनों को इवेल्युएशन मेथड से गुजार दें। इवेल्युएशन मेथड से यानी दोनों के लिए आपके पास अच्छा काउंटर फैक्चुअल होना चाहिए, यानी कंपैरिजन ग्रुप होना चाहिए, और मेथोडोलॉजी आपकी ठीक होनी चाहिए। जो भी आपका रिजल्ट आएगा दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर कर ले, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ इफेक्ट, इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स, तो कर सकते हैं आप बिल्कुल। वैसे मुझे ये था कि जिस तरह अभी आपने कहा ना कि एप्पल टू एप्पल हो, मेरा भी ये कॉन्सेप्ट, ये ऑब्जेक्टिव सेम ही है। मतलब अगर दो स्टडीज हैं जिसमें हम सोसाइटी की एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेम है, लेकिन एक स्टडी में हम उनको कैश ट्रांसफर करके देख रहे हैं और एक स्टडी में हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर या स्कूल या कॉलेज डेवलप करके दे रहे हैं। जी तो मैं ये चाह रहा हूँ कि क्या कैश ट्रांसफर ज्यादा बेनिफिशियरी है या इंफ्रास्ट्रक्चर बेनिफिशियरी है? ऑब्जेक्टिव दोनों का एजुकेशन है। वेरी गुड, एंड दैट्स एग्जैक्टली अ वेरी गुड क्वेश्चन कि हमें ये देखना चाहिए इफिकेसी को, ये उसकी इफेक्टिवनेस को इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो हमें ज्यादा रिजल्ट दे रहा। तो आप सिंपली दोनों की स्टडीज कंडक्ट कराएं, इवेल्युएशन की दोनों की, और इफेक्ट को कंपेयर करें आपस में। हाँ हाँ, कंपैरेटिव स्टडीज को कहते हैं। लेकिन उसमें जो मुझे भी बात कभी कभी कंफ्यूज करती है वो ये होती है कि उस स्टडी का जो आउटकम निकलता है वो कैश ट्रांसफर की फेवर में ही होता है। इन अ वे हमने सोशल प्रोटेक्शन को लिमिट कर दिया है कैश ट्रांसफर से। अच्छा, फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ये भी पता है कि कैश ट्रांसफर इफेक्टिव है भी, लोगों को ज्यादा उससे फायदा होता है, लोगों की चॉइस जो होती है उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन ये कि तो कट माय शॉर्ट स्टडी मौजूद है, लेकिन स्टडीज का इनवेरिएबल आउटकम ये होता है कि कैश ट्रांसफर ही अच्छा मॉडल है। यानी कि ये भी देखना चाहिए कि हम कंपैरिजन किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से या इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, तो फिर ज्यादातर जिस तरह सर ने कहा कि हो सकता है कि उसकी जनरलाइजेबिलिटी भी ज्यादा हो। अगर आपने कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया, इफेक्ट को देखा है, उसको जनरलाइज करने में मसला ये होगा कि हुकूमत के पास पैसा नहीं होगा इतना। इफेक्ट बहुत अच्छा होगा लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में। दूसरी तरफ कैश ट्रांसफर है जो शायद, या दूसरा कोई एग्जांपल ले ले जिसके अंदर कॉस्ट कम है, इफेक्ट भी प्रोपोर्शनली उस दूसरे से कम है, लेकिन कॉस्ट भी कम है, तो ओवरऑल जो उसकी इफेक्टिवनेस देखनी चाहिए हमें। ये देखना चाहिए कि
कितना इफेक्टिव है in terms of cost, in terms of quality, in terms of sustainability, in terms of the effect and everything. उन्होंने कहा जी आपको पता ही नहीं हम कैश ट्रांसफर दे किस लिए रहे हैं, आप लोगों को कारोबार पे लगा रहे हैं, वी जस्ट बाय डूइंग दिस फॉर पॉलिटिकल माइलेज। ज्यादातर जो अच्छे मॉडल्स है ना उसको देखकर इंस्पायर होते हैं और ऑल ऑफ अ सडन कमिट करने लगते हैं। ये नहीं देखते बेसिकली कि यहाँ पर भी क्या इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज हो सकती है या काम। लेकिन इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इम्पैक्ट इवैल्यूएशन एक प्रीवियस तरीके से करना जरूरी है इसके लिए। मेरा भी यही था कि जब हम ये 1 लाख बंदे को हम 1,000 रुपया दे रहे हैं, वो जो अमाउंट बनती है उस इलाके में अगर हम उसके अगेंस्ट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दें तो वो कंटिन्यूस उनकी हेल्प करती रहे, सस्टेनेबल है वो। चॉइस को लिमिट कर रहे हैं ना, लेकिन ठीक है, इट्स ये बड़ी डिबेट है। आपका पॉइंट तो बड़ा अच्छा है, और इसलिए हमने कैश ट्रांसफर, फिर लाइवलीहुड, फिर कंडीशनल, फिर नॉन कंडीशनल, फिर हमने उसको मल्टीप्लाई किया है जी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच डॉक्टर इनायत एज वेल। अभी मैं इसलिए बीच में इंटरवीन कर रही हूँ कि टी ब्रेक का टाइम हो चुका है, सो टी ब्रेक पर हम जाएंगे और उसके बाद लेट्स ट्राई कि हम 10:50 तक वापस आना शुरू कर दें ताकि हम अगला सेशन एग्जैक्टली टाइम पर स्टार्ट करें। एक और रिक्वेस्ट ये है कि जब आप कोई भी कमेंट वगैरह करते हैं, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ जो आपके सामने माइक है उसको यूज़ कर लें, या अगर माइक आपके करीब नहीं है तो हम में से किसी को बता दें ताकि हम ये वाला माइक आप तक पहुंचा दें, वो क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है और उसमें फिर आपकी आवाज़ पहुंचती नहीं है। ठीक है, सो प्लीज़ ये आपने बस इंश्योर करना है।